कम्युनिटी रिलेशन हो चुका था कल लास्ट डे. Yes, sir. Community relations. All the slides have been covered up. Okay. Fourth slide. Like last day we were in posting company's image. Okay, it has been over, but basic things again I would be covering one more time for 2 minutes or 5 minutes so that you can easily recognize the topic. So the community relation is what where the company usually initiate their external relationship as well as the internal also. Right? External relationship, especially with the people who are based externally, who are associated with the company directly or indirectly. Then yes, all kind of relationship mechanism which are initiated by the company to make them satisfy is called community relations. The company's policy to make the external people satisfied with the overall image of the company or their product or services, it is must needed to take care of them, to consider them in overall. So usually the different kind of initiative are taken care by the companies. हमने आपको बताया था last class में कि like for a general people give them the better infrastructure facilities, the parks, the job even the job facility to the needy because the job seeker also comes from the external world. So yes, they are also the part of community relations. So in overall, facilitating people with the variety of services and assistance is called community relations. The community relation is the method which recognize a company, which gives the better impression in front of them for better growth and sustainability. So that is all over the community relations. जहाँ पर हम अपने जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लोग हैं जो कि कंपनी के डायरेक्टली जुड़े नहीं हुए हैं कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटी के पार्ट नहीं है तो भी जो आसपास के जो सराउंडिंग है उन लोगों का हम ख्याल रखते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं उनके लिए स्कूल्स खुलवाना उनके लिए हॉस्पिटल्स खुलवाना कई और एनजीओज खुलवाना इस तरीके से जो हमारे सोसाइटल पीपल हैं उनको हम सेटिस्फाई करते हैं जरूरी नहीं कि वो हमारी कंपनी के पार्ट है और हमसे कोई उनका रिश्ता है कोई बाइंग के लिए करते हैं बट ये हमारे एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसके वजह से वी टेक केयर दैट द कम्युनिटी पीपल आर टेकन केयर more preciously and this relationship is called community relations. So we are over with that part. Today we'll start with the concept of the another relation, the internal relation that is called employees relations. Okay? Employees are also the community, the people, but the conditions that they are related with the company directly. They are the part of the company. Employees, जो workers हैं, जो staff members हैं, जो company के लिए काम करते हैं, company उनके बारे में कैसे सोचती है, या उनके साथ एक अच्छा बर्ताव, एक अच्छा relationship कैसे establish करती है, और ये जरूरी क्यों है? So that internal association is called the employees relations. When a company considers their workforce, their people in a well defined manner or with a standard code of conduct, then this relation is called employees relation, where only and only the community or the people is the employee, will not be considering anything else or anybody else. इफ इट इज एम्प्लॉयज रिलेशन इसका मतलब साफ है कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी जब अपने अंदर के जो वर्कर्स हैं जो वर्क स्टाफ हैं मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखती है उनको फैसिलिटेट करती है उनको असिस्ट करती है उनको सेटिस्फाई करती है ताकि वो पूरी जॉब के दौरान एक अच्छा अपना रिस्पॉन्स दे सके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जाना जाए और ये परफॉर्मेंस तभी कंपनी को मिलेगी जब उनके जो रिलेशंस हैं जब उनका बर्ताव है कंपनी के साथ उनका अच्छा कंपनी का बर्ताव अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा हालांकि ये टू वे रिलेशन है जरूरी नहीं कि हम सिर्फ एम्प्लॉयर की बात करें कि एम्प्लॉयर अगर बहुत अच्छा है तो ही एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे अगर एम्प्लॉयज भी लॉयल है कंपनी के लिए तो भी ज्यादा अच्छा काम होगा कंपनी का और उसकी जो इमेज है वो उनके सामने अच्छी बनेगी there are two differentiations generally some people comes from the private sectors they usually they have complaint with their employees
They are not at all satisfied with their company's conduct, the code of conduct, the ethical guideline. But at the same time, people working in the government sectors, they are quite satisfied. कभी भी सरकारी आदमी शिकायत नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेटिस्फैक्शन इसलिए मिलता है कि वहां पे उसको एज पर द नॉर्म्स, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स सब कुछ मिलता है, टाइम पे मिलता है, उचित सैलरी, सैलरी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है, टाइम बाउंड प्रमोशंस मिलता है, रिटायरमेंट के समय आ रहा कि अब ठीक है पीएफ हटा दिया गया, बट पहले वो भी मिला करता था। तो yes, the people belongs to the government sector jobs are satisfied, but at the same time the private people doesn't matter that how much salary they are getting from their employer, they are unsatisfied. They don't have a good relationship with their employer, or even employer do not have a good relationship with their employees. तो ये कमी क्यों आ रही है? Why people are not satisfied? The private people are not satisfied with their company, the organizations, because of the unfair practices. Private organizations, अगर मैं बात करूं कि बहुत टॉप लेवल का नहीं है, जैसे वेल रिकग्नाइज कंपनी लाइक द टाटा बिरलाज आर द कंपनी, जहाँ पे अगर कोई वर्कर काम करता है तो उसको कभी ये फीलिंग नहीं होता है कि हम एक्सप्लॉइड हो रहे हैं, हमें अपने हक का जो है चीज नहीं मिल रहा है, हमें हक के बराबर पैसे नहीं मिल रहे हैं, फैसिलिटेशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर लाइक द टाटा बिरला वगैरह, तो बाकी के जितने कंपनीज हुए दे डू नॉट हैव द फेयर प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज, they do not give them the right salary according to their specialty and their experience. If the salary part is okay, then the working tenure is more. पता चला कि 1 लाख रुपए की सैलरी तो मिल रही है लेकिन 12 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, क्या फायदा ऐसे काम का? तो कहीं अगर वो कुछ देती है तो उसके बदले आपसे बहुत कुछ वो ले लेती है। Right? They you know they understand you or they realize you in employees the means of production. सिर्फ आप काम कर जरिया हैं और कुछ नहीं है, उनके लिए फायदे का चाहिए। अगर फायदे का अगर आप सौदा नहीं है तो आपको कभी भी वो बाहर निकाल कर बाहर फेंक देगा। तो यस, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एथिकल गाइडलाइन है कंपनीज की, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है एम्प्लॉयज के लिए। इसलिए एम्प्लॉयज हमेशा कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है व्हेन ही इज वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्टर जॉब, बट द गवर्नमेंट पीपल आर नॉट, बिकॉज वहां पर उनको एक जो फेयर प्रैक्टिस देखने को मिलता है, गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग देयर पीपल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नॉर्म्स which has been framed by the government for that department of organizations. So the people are satisfied. तो यहाँ पे बात आती है कि हर एम्प्लॉयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करे, उनको फैसिलिटेट करे, असिस्ट करे, जो उनके स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं। कंपनी के नॉर्म्स तो सभी के होते हैं, दे ऑल हैव देयर कोड ऑफ कंडक्ट्स, देयर स्टैंडर्ड गाइडलाइन ऑफ वर्किंग, बट वो सिर्फ जो उनके रूल बुक में होता है वही होता है, कभी वो एप्लीकेबल नहीं होता है 100%। एक एग्जाम्पल की, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग और बिफोर द रिक्रूटमेंट दे विल मेक अ लॉट ऑफ कमिटमेंट दैट वी हैव सच पॉलिसी, हमारे पास जो है प्रमोशन की पॉलिसी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हम टाइम पर प्रमोशन देते हैं, हम इंक्रीमेंट देते हैं, हमारे यहाँ वर्किंग आवर सिर्फ 8 घंटे का है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअली जब एक एम्प्लॉयज ज्वाइन करता है तब उसको हकीकत का सामना करना पड़ता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने पड़ते हैं, छुट्टियां कम मिलती हैं, प्रमोशंस के समय में कंडीशंस लगा देते हैं कि आपके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो अपने रेगुलेशंस को वॉइड करती है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से उसको फॉलो नहीं करती है, सो दैट इज व्हाई द पीपल वर्किंग विद दैट इज डिससेटिस्फाइड, एंड वो घुसते ही 1 साल के अंदर दूसरी जॉब ढूंढने की जेहद में लग जाता है बिकॉज ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन। तो employees relation means what? How a companies usually take care their customers more preciously according to their standard norms and rules. If it is being followed according to the standard rules, then yes, the employees are satisfied. When the employees are satisfied, they will give the 100% productivity. उनकी performance अच्छी होगी. But the employees are if not satisfied with the company's policy, they will not perform well for the company. एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। If obviously I'm working in a private sector education institution, SMS.
प्राइवेट सेक्टर में होने के बाद भी आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद एसएमएस because we get good environment, we get uh, the right compensation and salary, we get time on promotions, increments, leaves, everything. But at the same time, the institutions located nearby, there are so many. I'm not going to take the names of all those institutions. कुछ भी नहीं है वहाँ पे. आपको ना सैलरी मिलती है, ना छुट्टियां मिलती है. जब मन आया उसको रख लिया, जब मन करे निकाल दिया. तो वहाँ पे एम्प्लॉयज कहाँ से सेटिस्फाइड होंगे? And reason behind the SMS in SMS, the people, many faculty members working more than 20 hours from the inception. जब start हुई थी तभी से काम कर रहे हैं. And I have been working for more than 5 years because of the good HR practices, because of the good relationship with the SMS management, with their faculty and other staff. So the people are satisfied. So they give their 100% results. They give the better productivity. बट इन अदर इंस्टीट्यूशन इज नथिंग. आज इस समय हम बात करें कि कोरोना के टाइम में तो कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर फैकल्टीज को जो है या तो आधी सैलरी में रखा जा रहा है या उनको निकाल दिया जा रहा है टू रिड्यूस देयर कॉस्ट. So this is not according to the norms of the company. Please give me a minute. I have a call. Okay, welcome back. Uh, सर कहीं कहीं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सैलरी हाई मिलती है, मतलब इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. तो ऐसा भी तो होता है. तो salary is ऐसे not कैसे the कह सकते हैं? salary is okay. What I am saying कि भाई सैलरी तो प्राइवेट में गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा है, लाखों में है. लेकिन फिर भी बावजूद इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो क्यों छोड़कर चले जाते हैं या फिर दूसरे सेक्टर में ज्वाइन कर लेते हैं या अपना बिजनेस कर लेते हैं, या अगर है भी तो साल 2 साल के अंदर क्यों वो बार बार चेंज करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर इनफेक्टिव एचआर प्रैक्टिसेस दे आर नॉट सेटिस्फाइड. सैलरी इज नथिंग. आज के समय में मैं आपको बताऊं कि इवन द पीपल अर्न्स मोर देन लैक्स, 2 lakhs 5 lakhs सैलरी है ना, वो छोड़ छाड़ कर टीचिंग में आ रहे हैं जहाँ पे आधी भी सैलरी उनको नहीं मिलती है. बट दे आर सेटिस्फाइड विद द टीचिंग प्रोफाइल. 8 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, लेकिन वो 50,000 में काम करना पसंद कर रहे हैं, 60,000 में काम पसंद क्यों? बिकॉज ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन. तो क्या उसमें वर्कलोड ज्यादा रहता है और टीचिंग में कम, मतलब ठीक ठाक रहता है, ऑब्वियसली देखिए बैलेंस रहता टीचिंग में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई जस्ट टेकिंग द क्लासेस 2 3 4 क्लासेस जितना भी है जो वर्कलोड है, और इसके अलावा जो भी कुछ ऑफिशियल वर्क्स होते हैं दैट्स इट, हम अपने टाइम पे चले जाते हैं. सबसे बड़ी बात है प्राइवेट सेक्टर में जब आप काम करते हैं तो यू डू नॉट हैव ए स्टैंडर्ड टाइम स्लॉट. आप सुबह के 9 बजे आते हैं, रात के 9 बजे घर जाते हैं, 8 के 9 10 बजे तक घर जाते हैं. ये कौन सा एचआर प्रैक्टिस है?
पैसा भले आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आपकी क्या कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होती है। तो आपको कुछ नहीं, एक जरिया समझते हैं अपने कमाई का, अपने प्रॉफिट का। ये कौन सी पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर में कि रात के 8 बजे 9 बजे तक हम काम करेंगे तो कंपनी हमें ग्रोथ देगी, नहीं करेंगे तो नहीं करेगी। 12-13 घंटे कभी काम के लिए नहीं होता है। बोलो। तो वो सैलरी भी इंक्रीज कर दें और प्लस जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा देते हैं, इसलिए सैलरी मतलब देखो, सैलरी तभी। प्राइवेट के अंदर प्रॉब्लम ये क्या है कि जितना ज्यादा तुम पाओगे उतना ज्यादा तुम्हें अपनी एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। कंपनी जितना ज्यादा, परफॉर्मेंस यस, जितना पे करती है उससे 10 गुना तुमसे निकालना चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो है आपकी परफॉर्मेंस को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और आप कंपनी में भी या तो काम करना पसंद कर, आपको निकाल दिया जाएगा, या खुद आप फेड अप होकर छोड़ देंगे कंपनी। तो उनकी जो एचआर पॉलिसीज हैं वो फेवरेबल नहीं होती हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जॉब डिस्क्रिमिनेशन हैं, आपको सैलरी कम मिल रही है, आपसे कम पढ़े लिखे को ज़्यादा मिल रहा है, आपको डिससेटिस्फेक्शन होगा ना। तो हो सकता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो ये तो मतलब कोई नहीं, कंपैरिजन करने का वो नहीं है, नहीं, परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है ना। परफॉर्मेंस की बात नहीं है। जॉब सेम क्वालिफिकेशन या सेम परफॉर्मेंस के लिए भी जॉब डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। आप अपने बॉस के कितने चाहते हैं, आप अपने मैनेजर के कितने चाहते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी ज्यादा या कम होगी। ओके, मतलब पर्सनल एजेंडा वहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल, पर्सनलिज्म पूरी तरह से। एक मिनट रुकना अनुभव, है ना, एक। ओके। हाँ, तो पर्सनलिज्म पूरी तरीके से हावी होती है प्राइवेट जॉब के अंदर। यू आर नॉट कंसिडर्ड डिपेंडिंग अपॉन योर एफिशिएंसी, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशंस, बट इट डिपेंड्स कंप्लीटली दैट हाउ यू आर क्लोजर टू योर बॉस। दैट्स इट। तो ये चीजें गवर्नमेंट में नहीं होती है। गवर्नमेंट में जो एज पर द लॉ है, जो टाइम बोन्ड प्रमोशन है, जो इंक्रीमेंट है, जो आपको फैसिलिटेशन है, वो बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। आपको कभी किसी इस चीज को पाने के लिए किसी को बहुत ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस भी आप आ, बहुत ज्यादा बियॉन्ड पार नहीं करेंगे। आपकी जितनी नेसेसिटीज हैं, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, उतना ही काम करेंगे, और बाकी आपको सब मिल जाता है। So that is the differentiation between private and public. The public sector jobs are favorable jobs to the people because वहाँ पे उनको पता है कि जो जॉब प्रोफाइल है उतना ही करना है, जितना घंटा तय किया गया उतना ही घंटा काम करना है, और उसी के बेसिस पे उनको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। तो एम्प्लॉयज रिलेशन हम इसी को कहते हैं कि हाउ एन एम्प्लॉयर और कंपनी यूजुअली ट्रीट्स देयर पीपल, the internal people, how they facilitate, how they provide the right kind of job surrounding, or the environment, how much salary and compensation are being paid to the employees according to their overall accomplishments, and so on. So when these things are favorable to the employees, means everything is being carried out according to the standard policy of the company, which is committed to the employees before joining. If it is being rendered, अगर मिल रहा है, तब तो हम कहेंगे कि there is a good relationship between employees and employer, and employees will work with their full enthusiasm for the well-being of the company. और अगर ये चीजें नहीं मिलती है तो वो डिससेटिस्फाई होता है, और इस तरीके से जो वर्किंग है वो अफेक्ट होती है, परफॉर्मेंस है जो वो अफेक्ट होती है। तो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, हम चूंकि सब्जेक्ट में पब्लिक रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे कि हर कंपनी का एम्प्लॉयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली ट्रीट करे, अपने जो स्टैंडर्ड कमिटमेंट है उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को कंसिडर करे, फैसिलिटेट करे, एंड दैट्स कॉल्ड द एम्प्लॉयज रिलेशन। अब कुछ लाइंस जो लिखे हैं पढ़ लेते हैं। द टर्म एम्प्लॉयज रिलेशन रेफर्स टू कंपनीज एफर्ट टू मैनेज रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज। इट्स अ कंपनीज एफर्ट। क्योंकि हम एम्प्लॉयज रिलेशन की बात करें तो कौन स्टैब्लिश करेगा? ऑब्वियसली कंपनी करेगा। तो कंपनीज की जो स्टैंडर्ड एफर्ट्स का मतलब है जो उनकी स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कितना ज्यादा स्टैंडर्ड है और कितने ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो होते हैं। एक रिलेशनशिप बनाने में
एम्प्लॉयर या और एम्प्लॉयज के बीच। अगर स्टैंडर्ड है तो सब कुछ अच्छा चलेगा, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो वहां पे डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, रिलेशनशिप खराब होगा। An organization with a good employees relations program provides fair and consistent treatment to all employees, so they will be committed to their job and loyal to the company. The same statement जैसा हमने आपको कहा कि the facilitations are good. Okay, resume now. तो ये कहता है कि एम्प्लॉयज रिलेशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स फेयर एंड कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट। फेयर एंड कंसिस्टेंस अपने आप प्रूव्ड हो जाएगी जब स्टैंडर्ड पॉलिसी को फॉलो करती है कंपनीज का। कमिटमेंट कुछ और इम्प्लीमेंटेशन कुछ और, तो ऐसे नहीं चलेगा, ये डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। Employees relation programs are typically part of human resources strategy designed to ensure the most effective use of people to accomplish the organization missions. कहने का मतलब है कि जो उनकी पॉलिसीज है, राइट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी के अंदर, एचआर डिपार्टमेंट होता है, और इस एचआर डिपार्टमेंट में ही एम्प्लॉयज से रिलेशंस के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। एम्प्लॉयज के साथ कैसा बर्ताव किया जाना है या उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, हु इज द अथॉरिटिव पर्सन और द अथॉरिटी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, द एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज एक डिपार्टमेंट में जहाँ पे एम्प्लॉयज से रिलेटेड सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किए जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किए जाते हैं, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए पॉलिसीज बनती हैं, कब प्रमोशन देना है, कब डिमोशन देना है, या किस तरीके से ट्रीट करती है। तो उनकी जो एचआर पॉलिसी है एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कितना ज्यादा फेवरेबल है, या एम्प्लॉयज को हैराश करने वाला है, परेशान करने वाला है। अगर उनकी एचआर पॉलिसी अच्छी है, सारी चीजें मिलती है, तो एम्प्लॉयज अपने आप सेटिस्फाइड। अगर वो नहीं, अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। आप 10,000 रुपए की सैलरी में अगर आप कहेंगे 12 घंटे 13 घंटे काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के लिए, जहाँ पे जो फेयर सैलरी फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 30,000 रुपए है, और एम्प्लॉयज को 10,000 रुपए देके कहते हो कि 12 घंटे काम करो और हमारे ऑब्जेक्टिव को हासिल करो, कौन करेगा, क्यों करेगा? वो कंपेयर करना शुरू करता है कि जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है इस जॉब प्रोफाइल के लिए उतना मिलना चाहिए, या मेरे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी इतना ही पे कर रही है और कह रही है काम इतना करो। नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, आप उसके ऊपर ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। तो आपका एचआर पॉलिसी क्या एक एम्प्लॉयज को कंसिडर करती है उसके ओवरऑल अकॉम्प्लिशमेंट के बेसिस पे या उसकी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे, या नहीं? अगर करती है तो वो पूरे जी जान से ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। अगर नहीं है तो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा और आपके भलाई के लिए, या बहुत मेहनत नहीं करेगा, काम से जी चुराएगा, और जब वो काम नहीं करेगा तो आपके ऑब्जेक्टिव कभी भी फुलफिल नहीं होगी। इसी सर वजह जो से कम्युनिटी एक्सक्यूज मी सर जो कम्युनिटी रिलेशन था वो भी एचआर के अंडर में आता है या फिर उसका अलग डिपार्टमेंट होता है? एक कम्युनिटी, हाँ देखो, कम्युनिटी का मतलब तो समुदाय होता है ना। कम्युनिटी, हम एम्प्लॉयज को भी कम्युनिटी मानते हैं, राइट? व्हेन द हाँ मल्टीपल पीपल आर गैदर्ड, देन दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। इफ मोर देन वन हाँ पीपल इज आर देयर इन द ग्रुप, देन दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। चाहे वो एक्सटर्नल कम्युनिटी हो सकता है, चाहे इंटरनल कम्युनिटी होगा। तो लोगों की जो गैदरिंग है, ग्रुपिंग है, वही कम्युनिटी होती है। तो यहाँ पे हाँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो? तो वो एचआर में ही आता होगा क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कम्युनिटी से रिलेटेड ही ऑब्वियसली होती उसको है। हम एचआर कम्युनिटी कह सकते हैं। एचआर कम्युनिटी, क्योंकि उस टीम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहां पे उसका डिसीजन मेकिंग होता है। तो एचआर कम्युनिटी, एचआर ग्रुप, एचआर डिपार्टमेंट इज द कम्युनिटी ऑफ पीपल, द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? नहीं, जैसे आपने कहा कि जो एम्प्लॉय रिलेशन है वो एचआर
डिपार्टमेंट के अंडर आता है कि वो एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करता है। उसी तरह जो कम्युनिटी रिलेशन है वो भी एचआर डिपार्टमेंट के अंडर ही आता होगा कि हमें, जैसे डीएलडब्ल्यू का एचआर डिपार्टमेंट है, उसी ने ये फैसिलिटेट किया होगा कि वो जो सूर्य सरोवर है वो उसमें भी आम आदमी आ सकता है और उसको यूज कर सकता है। तो यही मैं पूछ रहा था कि वो एचआर डिपार्टमेंट होता है या फिर अलग से कोई पीआर डिपार्टमेंट उसके लिए होता है। नहीं, एचआर जो है स्पेसिफाइड हो जाता है सिर्फ एम्प्लॉयज के रिलेशन के लिए। अगर हमने ये डिफाइन कर दिया कि एम्प्लॉयज रिलेशन या एचआर रिलेशन, तो वहां पे हम किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं लोग हैं उनको शामिल करेंगे। इंटरनल सिर्फ इंटरनल पब्लिक। इंटरनल एम्प्लॉयज रिलेशन इज एन इंटरनल कम्युनिटी रिलेशंस ऑफ पीपल वर्किंग स्पेशली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर तो केवल वही एचआर के अंदर रहता है। हाँ, सिर्फ एचआर, हम्म। अगर हम एचआर पॉलिसी की बात करें तो ऐसे जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉयज जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, तो उसको हम एम्प्लॉयज रिलेशन या एचआर पॉलिसी कहते हैं। वो एचआर पॉलिसी हम पूरी ओवरऑल कम्युनिटी के लिए डिसाइड नहीं कर सकते, हम कस्टमर्स के लिए नहीं डिसाइड कर सकते। कस्टमर्स के हम्म। जो स्ट्रेटेजी के लिए हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा। हम्म। तो हम्म। सबके अपने अपने डिपार्टमेंट बटे हुए हैं और उसके रिलेटेड हम हम्म। पॉलिसी फ्रेम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे टॉपिक आपका सिर्फ एम्प्लॉयज रिलेशन से रिलेटेड है, तो हम किसके बारे में बात अच्छा। करेंगे कि रिलेशनशिप दैट इज अच्छा। स्टैब्लिश्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयरनेस एंड द बेटरमेंट ऑफ द इंटरनल एम्प्लॉयज ओनली। ठीक है, यहाँ पे ओके। स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक हो गया एम्प्लॉयज के लिए। हम दूसरे किसी कम्युनिटी को यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। ओके सर, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। तो उसमें एचआर डिपार्टमेंट अलग हो गया जो कि एम्प्लॉयज को हैंडल करता है, पीआर हम्म। डिपार्टमेंट भी अलग होगा जो पब्लिक रिलेशन हाँ हैंडल हाँ हाँ करता है। हाँ, पब्लिक रिलेशनशिप लेकिन इज। लेकिन आपने कहा कि पब्लिक रिलेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, तो क्या वो पीआर डिपार्टमेंट जो है वो इंटरनल के लिए भी रिलेशनशिप क्रिएट करेगा जो एचआर पहले से कर रहा है? मतलब वो दोनों काम करेगा, एचआर का भी थोड़ा बहुत उसमें एंगेजमेंट होगा, क्योंकि वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है वो इंटरनल पब्लिक के लिए भी है, एक्सटर्नल पब्लिक के लिए भी है। तो बिल्कुल। अगर उसको रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो वो एक्सटर्नल के साथ भी करेगा, इंटरनल के साथ भी करेगा। तो जब इंटरनल के साथ करेगा तो वो एचआर का हेल्प कर रहा है एक तरह से, क्योंकि एचआर भी तो उसी लिए बना है ना, क्योंकि जो इंटरनल पब्लिक है उनको वो अच्छे से रेगुलेट कर सके, एफिशिएंट उनको डिवीजन ऑफ लेबर जिसे कहते हैं वो प्रोवाइड कर सके। तो एक तरह से पीआर जो है वो एक एचआर का ओवरऑल हेल्प कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट है। पब्लिक रिलेशन इज दी, हम कहेंगे कि एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, और एचआर इज द पार्ट, इट्स द नैरो पार्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। या पब्लिक ओके। रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, वो ओवरऑल वेलफेयरनेस की बात करते हैं। पब्लिक मीन्स द इंटरनल पब्लिक एज वेल एज द एक्सटर्नल पब्लिक। तो वो ब्रॉडर वे में डिसीजन मेकिंग करता है। और एचआर जो है वो एक पब्लिक रिलेशन का इंटरनल पार्ट है, जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। पब्लिक रिलेशनशिप के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एचआर डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसीज बनाएगा इंटरनल पीपल के लिए। और साथ ही साथ वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो एक्सटर्नल पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं, जो मीडिया है, जो गवर्नमेंट है, सोसाइटल पीपल है, उनके लिए भी पॉलिसी बनाएगा। तो एक तरह से जो पब्लिक रिलेशन हो गया, एक ओवरऑल मैनेजमेंट को देखते हैं, एंड एचआर इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन, बट द एचआर इज स्पेशली अच्छा। मेड फॉर द इंटरनल पीपल ओनली। ठीक है। अच्छा, पर जो एचआर इम्प्लीमेंट करेगा, पॉलिसीज जो बनी रहेंगी पीआर की तरफ से उसे इम्प्लीमेंट करेगा एचआर, जो आपने कहा अभी, यही? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, उसको अच्छा। फॉलो ओके, करेगा मतलब वो। पॉलिसी मेकिंग मेन पीआर करता है, उसको इम्प्लीमेंट जो है वो इंटरनल पब्लिक के लिए एचआर करता है। एचआर डिपार्टमेंट करता है। ठीक है। ओके। और ओके। अगर हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल की बात करें तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देती है कि कस्टमर्स को खुश रखने के हम्म। लिए इस तरीके का फैसिलिटेशन हम्म। दीजिए, गवर्नमेंट को हम्म। सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके को। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन, पब्लिक रिलेशन इंस्ट्रक्शन देती है, और अलग अलग डिपार्टमेंट हम्म। फिर अपने तरीके से उसको फ्रेम कर कर लोगों तक पहुंचाता है। ओवरऑल मैनेजमेंट जो होता यानी है वो। हाँ। पीआर जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी ओवरहेड करता है,
प्लस एचआर को भी एक तरह से देखता है, ये ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, जितने भी कम्युनिटी रिलेशंस हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इन हम्म, सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के पास होता है। जैसे एक गवर्नमेंट में पोस्ट होती है पब्लिक वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, एक पोस्ट होती है हाँ। पब्लिक वेलफेयर ऑफिसर। तो उस हम्म, पब्लिक वेलफेयर का ऑफिसर का काम ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी डिस्ट्रिक्ट में जब उसकी पोस्टिंग होती है, तो हम्म, उस पोस्टिंग के बाद जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सिटीजन्स हैं, उन सिटीजन्स के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उन तक पहुंचाना, उनके साथ एक अच्छा नेगोशिएशन करना, रिलेशंस करना, उस पब्लिक हम्म, वेलफेयर ऑफिसर का काम होता है। जो सोसाइटी होती है, जो सिटीजन होती है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे उसकी पोस्टिंग होता है, उनके लिए जो गवर्नमेंट की हम्म, प्लान है उनको वहां तक पहुंचाना और पब्लिक को सेटिस्फाई करना, उनके नीड को फुलफिल करना, हम्म, वही उसका काम होता है। इसलिए उसका नाम पब्लिक वेलफेयर ऑफिसर रखा गया है। इसी तरीके से कंपनीज के अंदर, हर कंपनीज के अंदर एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, और वो डिपार्टमेंट क्या करता है, ओवरऑल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस के ओवरऑल मैनेजमेंट को देखता है, चाहे वो इंटरनल हो गया चाहे एक्सटर्नल हो गया, उनके लिए पॉलिसीज फ्रेम सर करता है। सर एक इसे क्लियर करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कंज्यूमर के लिए, कस्टमर हम्म, के लिए मेनली, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और गवर्नमेंट भी उसके अंडर आता है, मार्केटिंग मार्केटिंग है डिपार्टमेंट के नहीं, अंदर? मार्केटिंग के अंदर वो नहीं आता है। मार्केटिंग का काम सिर्फ और केवल सिर्फ केवल कस्टमर यस, उसका कस्टमर काम कम्युनिटी, किस कम्युनिटी को सेटिस्फाई करना है, जो उसकी टारगेट ऑडियंस है, कस्टमर्स। एंड मार्केटिंग डू नॉट अच्छा, सप्लाइज एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, एंड दिस इज द ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, कि भाई ओके, गवर्नमेंट को वो इंटरेक्ट करेगा। ओके। एचआर एम्प्लॉयज जो इंटरनल पब्लिक है उसका, और पीआर जो है वो दोनों को, और जो ओवरऑल कम्युनिटी है, हाँ, और जो कम्युनिटी रिलेशन जो आपने कहा वो किसके अंडर आता है? वो पीआर के अंडर अंडर ही आता है? हाँ, कम्युनिटी रिलेशन इज द अच्छा, पीआर रिलेशंस। हम उसको कम्युनिटी रिलेशन कह सकते हैं, पीआर रिलेशन कह सकते हैं। कौन करता है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है। ओके सर, ओके। पब्लिक रिलेशंस तो कहाँ पर थे? ये सब चीजें हो गई हैं बेसिकली। ह्यूमन रिसोर्स स्टडी डिजाइन टू इंश्योर मोस्ट इफेक्टिव पीपल। अब ये नेक्स्ट लाइन कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स स्टडीज आर डेलिब्रेट प्लान्स वेयर plans company used to help them gain and maintain a competitive edge in the marketplace. So human resource strategy is something which is framed by the human resource department, and that is only for the welfare and to make the competitive environment to the employees. एक competitive environment जो आगे इसका मतलब समझे क्या होता है, कि भाई एक कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो उनकी पॉलिसी है वो क्या कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने आपको कहा ना कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, एसएमएस की एचआर पॉलिसी टुवर्ड्स दी फैकल्टी मेंबर्स, एक दूसरा सामने हम्म, इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर उनकी एचआर पॉलिसी उनके एम्प्लॉयज के लिए। हम तुलना हम्म, क्यों कर रहे हैं? हम आज एसएमएस की तुलना किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के एचआर डिपार्टमेंट से क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हमको देखने को मिला है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में क्या है कि हमें ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है एज कम्पेयर टू दी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सो दैट्स व्हाई वी आर सेटिस्फाइड। तो हर ह्यूमन हम्म, रिसोर्सेज के पास एक पॉलिसी होती है जो कि एम्प्लॉयज को बताती है कि हाउ वी आर मच बेटर देन दी अदर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। So we have the standard policy that the other company do not have. बिना नाम लिए वो नहीं बताती यूजुअली, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये इंडिकेट कर देती है एम्प्लॉयज को कि वी आर मच बेटर बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड पॉलिसी, एंड अदर कंपनी डू नॉट फॉलो दैट, सो जस्ट सस्टेन विद अस, हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें हर तरह की सुविधाएं फैसिलिटेशन देंगे। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आप बनाते हैं जब एम्प्लॉयज को आप इनकरेज करते हैं अपनी पॉलिसी की तुलना करने में दूसरे कंपनी के साथ, तो हम एम्प्लॉयज आसानी से उसको कंपेयर करके ये पता लगा लेते हैं कि विच वन इज अ बेटर, और जो बेटर होता है हम उसकी ओर मूव कर जाते हैं। तो एक अच्छे एम्प्लॉयज रिलेशन के लिए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी एचआर डिपार्टमेंट का एक एसेंशियल काम होता है। Employee relations program focus on issues affecting employees such as pay and benefits, supporting work-life balance and safe working conditions। तीन चार चीजें यहाँ पे दी गई है, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें आती है। जब आप एक एचआर रिलेशन की बात करते हैं तो दीज आर
few example out of them कि अगर आप जो fees and benefits है वो एक स्टैंडर्ड पे देते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ देते हैं, तो हम सेटिस्फाइड हैं। अगर वो कम मिलता है, हमारे एक्सपीरियंस हमारे नॉलेज के हिसाब से कम मिलता है, तो हम डिससेटिस्फाई होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है कि भाई आप जो ड्यूटी का टाइम है ड्यूटी में दीजिए, जो आपके घर का अपने फैमिली के साथ जो टाइम है वो फैमिली को दीजिए। इन दोनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप पता चला कि 12-13 घंटे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अफेक्ट होती है। तो क्या आपकी कंपनी एक वर्क लाइफ बैलेंस का जो सिस्टम है वो फॉलो करती है, या फिर सिर्फ आपसे काम ही करवाती है, आपको घर ही नहीं जाने देती? अब एक एम्प्लॉय सुबह के 10 बजे आकर रात को 10 बजे घर जाता है, तो फैमिली लाइफ क्या होती है? फिर अगले दिन सुबह के 8 बजे से वो तैयार हो जाता है। तो अपने फैमिली के लिए क्या जिएगा? वो पैसे तो कमा रहा है, लेकिन पैसे को यूज करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक एक जो फैमिली रिलेशंस खराब होता है। तो क्या कंपनी आपको वो वर्क लाइफ बैलेंस देती है? जैसे हम लोग आते हैं सुबह के 10 बजे, शाम को 5:30 बजे, हर दिन निकल जाते हैं। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है ऑर्गेनाइजेशन में हम करते हैं, हमारा जो घर का काम है हम घर में करते हैं, सो वी आर सेटिस्फाइड। लेकिन कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। आपको 8 घंटे और 7 घंटे में नहीं छोड़ते हैं, 12 घंटे में छोड़ते हैं। जब 12 घंटे छोड़ते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस आपकी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, और जब बर्बाद हो जाएगी तो रिलेशंस बिगड़ेंगे। तो ऐसे नौकरी का, ऐसे पैसे का क्या काम है? तो क्या कंपनी आपको वर्क लाइफ बैलेंस, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस देती है या नहीं देती है? सेफ वर्किंग कंडीशन जहाँ पे आप काम करते हैं, वो इन्वायरमेंट ज़्यादा हैजार्डस या फिर आपके लिए नुकसानदायक फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ पे वर्कर्स जो मशीन के साथ काम करते हैं, तो मशीन में जो सेफ्टी कंसर्न है, क्या उस कंपनी के पास वो सेफ्टी कंसर्न है? लोगों को वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है, उनका पहनावा, उनके लिए ग्लव्स या जो भी जिस तरह की इंडस्ट्री है, वही चीज़ें उनको पहनाई जाती है, या उनको खुला छोड़ दिया जाता है कि यस? बैकग्राउंड नॉइज प्लीज, आप इसको म्यूट करिए, किसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? प्लीज म्यूट योर बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है। तो सेफ वर्किंग कंडीशन भी अगर आप अच्छा प्रोवाइड कराते हैं तो लोग खुश होते हैं। जैसे हम लोग मान के चलो एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, तो वी हैव आवर ऑन कैबिन्स विद फुल फैसिलिटीज। हमारे डेस्कटॉप, हमारे टेबल में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। हमारे पास बेसिक फोन्स लगे हुए हैं। गर्मियों में हमारे लिए एसी चलाए जाते हैं। हमारे लिए प्योन्स हैं जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमें फैसिलिटेट करते हैं। क्लासेस में हमारे लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। तो हम सेटिस्फाइड हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन हमें पूरा ख्याल कर रही है, हमें एक पर्सनल स्पेस देती है, हमारा केयर करती है। तो हम सेटिस्फाइड हैं। हमारे लिए वर्किंग कंडीशन एसएमएस की बहुत अच्छी है। किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में आपको शायद ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। आपको केबिन मिलता ही नहीं, आपको कहीं पे भी किसी कॉमन जगह में एक साथ 50 लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे आपकी पढ़ाई अफेक्ट होती है। क्लासरूम जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि फैन अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड अच्छी नहीं है, या जो असिस्टेंट्स है, जो स्टेशनरी है, चौक वगैरह, डस्टर, वो चीज़ें नहीं मिल रही है, तो अफेक्ट होगी, हमारी पढ़ाई अफेक्ट होगी। तो क्या वर्किंग कंडीशंस आपको अच्छी तरीके से मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये भी आपकी एचआर पॉलिसी के हिसाब से पता चलता है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, वन ऑफ the most effective ways for a company to ensure good employee relation, it's adopt a human resources strategy to places a high value on employees as a stakeholder in this business. स्टेक होल्डर्स हमने आपको पहले बताया था, हु आर द स्टेक होल्डर्स हु आर द एसोसिएटेड विद द कंपनीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एम्प्लॉयज आर द इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। सो एक स्टेक होल्डर्स का कंपनी के लिए काम करते रहना, या कंपनीज के लिए अच्छा डिसीजन मेकिंग करना, वो बना रहेगा जब आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी उनके लिए फेवरेबल होगी, उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगी। अगर नहीं होती है तो इस केस में एम्प्लॉयज की जो वैल्यूज हैं वो हर्ट होगी, और इस केस में ही विल नॉट बी वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन विद देयर फुल पोटेंशियलिटी, विद हिज फुल करेजमेंट। तो ये भी एक एक फैक्टर है कि स्टेक होल्डर यानी एम्प्लॉयज को खुश रखना है, तो उनको एक स्टैंडर्ड पॉलिसी दीजिए। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी at 2 p.m. 2 p.m. Okay. So any question that you want to ask related with the, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, still 2 slides are more to be elaborated in the next class. Any questions? Okay. No.
Okay, then thank you. नो Thank you very much. थैंक यू सर